اب تک کی بہت بڑی اور تباہ کن خبر اس وقت شہباز حکومت کے لیے سامنے آ چکی ہے۔ ایک جانب تو آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کی وزیر اعظم ہاؤس آمد ہوئی ہے، تو وہیں دوسری جانب شہباز شریف کی اتحادی حکومت اب ٹوٹ چکی ہے۔ اس حوالے سے بڑی اہم ترین تفصیلات اور اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو شہباز شریف کی حکومت کے لیے ڈراؤنا خواب بن چکی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، امپورٹڈ حکومت نے ایک جانب تو اب کھل کر ملک کے اندر بحران کو مزید گہرا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف اب باضابطہ طور پر محاذ کھول دیا گیا ہے اور اب پارلیمان کو سپریم کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دینے کے لیے استعمال کیا جانا ہے۔ اس سب کے اندر سپریم کورٹ کے فیصلے نے بیسیکلی ایک بحران ختم کیا، لیکن اب فیصلے پر عمل درآمد نہ کر کے دوبارہ ملک کو بحران کے اندر دھکیلنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اور یہ بیسیکلی انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، کبھی کہتے ہیں ہم ڈالر 500 پہ لے جائیں گے، کبھی کہتے ہیں IMF کی ڈیل ناکام بنا دیں گے۔ بیسیکلی یہ صرف اور صرف بلیک میلنگ چل رہی ہے کہ کسی طریقے ہمارے ساتھ رہیں، ہمارے اقتدار کو دوام ملتا رہے۔ اور اس سب کے اندر جس دن سے ویسے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے، پوری قوم کے سامنے ہے کہ کس طرح سے ملک کو انہوں نے بحرانوں میں جان بوجھ کر دھکیلا ہے۔ اب مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں انہوں نے بھی بڑی ایک دبنگ تقریر کی، پھٹے اپنی طرف سے مریم نواز نے چک دیے اور ایک دلیری کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے بالکل عدلیہ کے ساتھ محاذ رائی کر لی ہے۔ اور اس سب کے اندر مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں کہ جس فیصلے کو سپریم کورٹ کے ججز کی اکثریت نہیں مان رہی، ہم سے کہا جا رہا ہے وہ فیصلہ مانو، وہ فیصلہ جس کو معزز جج صاحبان فیصلہ ہی ماننے سے انکاری ہیں اس کو قوم پر مسلط کیا جا رہا ہے۔ یہ پہلی بار سنا ہے۔ یہ کون سے معزز جج صاحبان ہیں جو اس فیصلے کو فیصلہ نہیں مان رہے اور انہوں نے ابھی تک قوم کو یہ نہیں بتایا لیکن مریم نواز کو بتا دیا ہے؟ یہ اہم سوال ہے۔ اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اب قومی اسمبلی کے اندر ایک قرارداد پیش کرنی ہے اور وزیر اعظم کی زیر صدارت حکومتی اتحادیوں کی سربراہی اجلاس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کیے جانے کی توثیق، یعنی اس کے اوپر ٹھپا لگوانے کے لیے قومی اسمبلی کا راستہ جو ہے وہ اب اپنایا جائے گا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اتحادی جماعتوں کا سربراہی اجلاس ہوا جس میں سپریم کورٹ کے فیصلے سے متعلق مشاورت کی گئی۔ ذرائع نے بتایا کہ سیاسی صورتحال اور آئینی بحران پر تفصیلی مشاورت کی گئی، جبکہ قانونی ٹیم نے شرکاء کو 3 رکنی بینچ کے فیصلے پر بریفنگ دی۔ ذرائع کے مطابق اتحادی جماعتوں کی قیادت نے عدالتی فیصلے کو اقلیتی رائے قرار دیا اور کہا کہ یہ جو رائے 3 رکنی بینچ نے دی ہے وہ متنازع ہے، ہم اسے متنازع سمجھتے ہیں۔ یہ اقلیت کا فیصلہ ہے، یہ فیصلہ بھی نہیں، یہ ایک اقلیت کی رائے ہے۔ دس از جسٹ آپ کہہ لیں کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، دس از ناٹ اے ججمنٹ۔ اسے جوڈیشل آرڈر ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ اس سب کے اندر ذرائع نے بتایا کہ فورم نے قومی معاملے سے متعلق نامکمل فیصلے پر تشویش کا اظہار کیا اور قانونی ٹیم نے رائے دی کہ ادھورے فیصلے کے اوپر عمل درآمد ممکن نہیں کیونکہ یہ ادھورا فیصلہ، اب اس میں ادھورا کیا ہے یہ نہیں پتا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان نے پارلیمان کی بالادستی کے لیے ڈٹ جانے کی تجویز دی، جبکہ نواز شریف اور مریم نواز نے بینچ میں شامل ججز کے خلاف ریفرنس دائر کرنے پر اصرار کیا۔ اس کے علاوہ حکومتی اتحادیوں کا موقف تھا کہ فل کورٹ نہ بنا کر انصاف کا قتل کیا گیا، پارلیمنٹ اپنی بالادستی تسلیم کروائے، اب بھی معذرت خواہانہ رویہ اختیار کیا تو بہت نقصان ہوگا، یعنی اپولوجیٹک بیہیویئر کو پیچھے چھوڑ کے اٹیک کریں، کھل کر حملہ آور ہوں۔ ذرائع کے مطابق کابینہ کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کیے جانے کی توثیق قومی اسمبلی سے کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس سمیت 3 ججز کے خلاف جوڈیشل مس کنڈکٹ پر ریفرنس دائر کرنے پر بہت سیریس قسم کا غور کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کی زیر صدارت پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس کل پھر ہونے جا رہا ہے۔ کل کے اجلاس میں قومی اسمبلی میں ممکنہ پیش کی جانے والی قرارداد پر مشاورت ہوگی۔ اجلاس میں اتحادی رہنماؤں نے وزیر اعظم کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے سول بالادستی اور پارلیمان کے استحکام کے لیے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ اب یہاں پر کل ہونا کیا ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کل قومی اسمبلی میں ایک اور قرارداد پیش کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب ہونا کیا ہے۔ قرارداد جو ہے پہلے ہی ایک پاس ہو چکی ہے، شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے اور کل امید ہے
है कि एक और करारदाद ऐवान में पेश होगी। इस हवाले से वजीर कानून मजीद बताएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में इस तरह का खिलवाड़ पहले देखने में नहीं आया। 3 रुकनी बेंच ने फुल कोर्ट की इस्तदा को रद्द किया। इस बेंच ने 4-3 के फैसले पर कोई बात ना की और सियासी जमातों को फरीक नहीं बनाया और दरखास्त मुस्तरद कर दी। लेकिन अब शहबाज शरीफ के साथ क्या होने जा रहा है? शहबाज शरीफ क्या सिर्फ नाअहल होंगे? जिस रास्ते के ऊपर नवाज शरीफ और मरियम नवाज शहबाज शरीफ को डाल रहे हैं उसमें नाअहली सिर्फ नहीं होनी। गिरफ्तारी के बाद एक लंबी जेल जो है, सजा जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अदालती हुक्म के ऊपर अगर अमल दरामद नहीं होता तो इसमें फिर सजा भी हो सकती है। ये सजा 5 मिनट की भी हो सकती है, लेकिन लंबी जेल जो है वो भी शहबाज शरीफ साहब का इंतजार कर सकती है और इसलिए शहबाज शरीफ साहब बजाते खुद कुछ डामाडोल हैं। अब यहां पर ताकतवर हल्के कहां पर खड़े हैं ये आपको अब अगली अपडेट के अंदर बताता हूं। पहले मैं खान साहब की स्टेटमेंट जो है वो आपके सामने रख दूं। इमरान खान साहब ने कहा है कि हुक्मरान माफिया को शिकस्त का खौफ है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट आइन की बालादस्ती कायम कर रही है, इसकी हिमायत और हिफाजत के लिए हमें सड़कों पर निकलने और पुरअमन एहतजाज के लिए तैयार रहना होगा। अदलिया नजरिया जरूरत को खत्म कर चुकी है। हकीकी आजादी की जानिब बिलाशुबा यह एक बड़ा कदम है। आजाद अदलिया के साथ खड़े थे, आजाद अदलिया के साथ खड़े हैं और हम आजाद अदलिया के साथ हमेशा हमेशा खड़े रहेंगे। और जारी बात है, खान साहब को भी पता है कि अदलिया पर खुलकर हमले होने हैं, इसलिए इमरान खान साहब अब अदलिया के साथ खड़े होने का बाज़ाब्ता तौर पर एक फैसला कर चुके हैं। अब यहां पर एक जानिब ये सारी चीजें आप अंडरस्टैंड करें, अब आप 2-3 चीजों को समझें। ये 2-3 चीजें, आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई की मुलाकात भी आपको समझ आ जाएगी। उसका जारी बात है एलामिया तो नहीं आता, सिर्फ पता चलता है कि जी मुलाकात हुई। एलामिया आ भी जाए तो एलामिया वही आता है जो हमें पहले से याद है और रटा रटाया। जिस भी वजीर आजम के साथ मुलाकात होती है कि जी वजीर आजम को आर्मी चीफ ने मुल्क की दाखिली और खारजी सिक्योरिटी के ऊपर ब्रीफिंग दी और तमाम तर चैलेंजेस से निमटने के ऊपर मामला डिस्कस हुए। वजीर आजम ने अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। ये मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन होपफुली इसी तरह का एक प्रेस रिलीज आता है और आना भी इसी तरह का चाहिए। ऑब्वियसली एक बड़ी हाई प्रोफाइल मीटिंग होती है, उसके मंदरजात तो मंजर आम पे आने भी नहीं चाहिए। क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होती है, ब्रीफिंग्स होती हैं, इतनी ही आती है डिटेल। खान साहब के दौर में भी, शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी। अब यहां पे परवेज इलाही साहब का किरदार, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने एक दफा एक बात की थी जिसे परवेज इलाही साहब के लिए बड़ा नेगेटिवली लिया गया, लेकिन मैं समझता हूं ये बड़ा पॉजिटिव कमेंट था। उन्होंने कहा कि वो इस हांडी के अंदर ना एक मसाला है और परवेज इलाही जो पॉपुलर पॉलिटिक्स है उसके माहिर नहीं है, पावर पॉलिटिक्स के माहिर है। देखिए हर बंदे की ना एक अपनी स्पेशलिटी होती है। एक बंदा फील्ड में निकल के बंदे घेर सकता है, खान साहब उसके माहिर हैं। खान साहब उससे बेहतर तो वो कोई भी नहीं कर सकता। परवेज इलाही साहब कोई इस तरह के क्राउड पुलर भी नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन पावर पॉलिटिक्स आप देख लें, इतनी सीटों के साथ वजारत आला के मजे ले लिए। इधर से ही आप जोड़ तोड़, पावर पॉलिटिक्स, दाव पेच और सियासी जो एक रविश होती है, ये सारी चीजें परवेज इलाही की एक्सपर्टीज है। खान साहब ने, परवेज इलाही साहब जो है उन्हें टास्क दे दिया कि, और ये कप्तान की बेहतरीन हिकमत अमली होती है कि वो प्लेयर की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचान के प्लेयर को उस जगह पे लगाए जहां पे उसकी स्ट्रेंथ है। परवेज इलाही को उनकी स्ट्रेंथ वाली जगह पे लगा दिया और 2 दिन पहले खबर आई कि जी जितने पीटीआई के पुराने इत्तेहादी थे उनके साथ पीटीआई के राब्ते बहाल करवा दिए, यानी वो जो एक कम्युनिकेशन चैनल था वो बाज़ाब्ता तौर पे चौधरी परवेज इलाही साहब ने एस्टैब्लिश कर लिया। परवेज इलाही साहब ने एक ट्वीट किया जो इनकी रातों की नींदें उड़ाने के लिए काफी है। और यहां पर अब आपको यह भी समझ आ जाएगी कि बहुत से इत्तेहादी इस वक्त इस हुकूमत के ऐसे हैं, ये 2 वोटों की हुकूमत है, किसी भी दिन सदर मुमलिकत एतमाद के वोट का कह देंगे, सारा मामला दबरदूस हो जाए, और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कह सकते हैं। एक इत्तेहादी इधर उधर हो गए तो पीछे से ये तबाह बर्बाद हो जाएंगे। अब यहां पर दिलचस्प मामला यह है कि बहुत से इत्तेहादी ऐसे हैं जो नून लीग के इत्तेहादी नहीं है, जो पीडीएम के इत्तेहादी नहीं है, जो कहीं और से इशारा मिलने पर ऑपरेट करते आए हैं। इससे पहले उनकी हिस्ट्री रही है, अब तो वो खुद भी कहते हैं अपनी निजी महफिलों में कि हमें जी बाजवा साहब ने कहा इसलिए हम उधर चले गए, हमें जी ऊपर से कहा जा रहा था इसलिए हम उधर चले गए। अब इस चीज को आपने माइंड में रख के परवेज इलाही साहब की ये स्टेटमेंट समझनी है। परवेज इलाही साहब ने कहा है कि जी पुरानी इत्तेहादियों के साथ बातचीत आगे बढ़ रही है, जल्द हम एक बहुत बड़ी खुशखबरी देंगे। वो भी तस्लीम करते हैं और हम भी तस्लीम करते हैं कि गलतियां दोनों तरफ से हुई हैं, अब इन गलतियों को सुधारने का वक्त आ गया है। यानी हमारी तरफ से भी हमारे दौरे हुकूमत में, पीटीआई के दौरे हुकूमत में इत्तेहादियों के साथ कुछ हुई होंगी, उन्हें हमारे रवैये से वो नाला है। ठीक है जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त। देखें जब सुलह होती है ना तब ये बात सबसे पहले होती है कि जी चलें ठीक है जी हमारी गलतियां थी, ठीक हो गया, आपकी भी होंगी कुछ, हम किसी बात पे नाला थे, आपको किसी और बात का रंज था, चलें अब आएं और इन बातों को सुधारें। और इस सब के अंदर पुराने इत्तेहादियों के साथ बातचीत आगे बढ़ रही
रही है, जल्द बहुत बड़ी खुशखबरी आ सकती है। दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आता हूं, अब आप ये देखें कि चौधरी परवेज इलाही साहब ने, हामिद मीर साहब ने अपने शो का एक क्लिप ट्वीट किया है जिसमें साबिक एडवोकेट जनरल तो बैठे थे, उसके साथ साथ इंजीनियर खुरम दस्तगीर बैठे थे, और सायरा बानो साहिबा हैं, ये रुकन कौमी असम्बली है जीडीए की तरफ से, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से। अब हामिद मीर साहब ने इस अपने शो के क्लिप की कैप्शन ये डाली कि चौधरी परवेज इलाही का दावा है कि पीडीएम वाले किसी गलत फहमी में ना रहें, एमकेएम हुकूमत से टूट चुकी है, लेकिन हुकूमत ने इस दावे को मुस्तरद किया है। आप बल्कि पहले जो सायरा बानो साहिबा हैं उनकी गुफ्तगू सुने, फिर मैं आपको बताता हूं कि एमकेएम हुकूमत का तो हिस्सा थी नहीं, वो तो किसी और का हिस्सा थी, किसने उन्हें यहां पे रखा। आप जरा ये पहले ये सुने। साहब, ये एमक्यूएम और जीडीए के परवेज इलाही साहब के साथ जो ताल्लुकात हैं, ये कुछ मजीद बेहतर होने वाले हैं? मैंने इनको असेंबली में इनके एक दो मेंबरान को बताया भी था, हुक्मरान जमात के एक शेर की सूरत में, कि तुमने छोड़ा तो किसी और से टकराऊंगा, तुमने छोड़ा तो किसी और से टकराऊंगा, मुमकिन ही नहीं कि अंधे का कहीं सर न लगे, मुमकिन ही नहीं कि अंधे का कहीं सर न लगे। तो मैंने कहा था अपने इत्तेहादी पकड़ के बैठे। अपने इत्तेहादी पकड़ के बैठे, तो आपने तोड़ लिए? लगता है ऐसे ही है। तो एमकेएम टूट गई? एमकेएम तो वैसे भी देखिए उनका गैर फितरी इत्तेहाद है पीपल्स पार्टी के साथ। जी, तो आप यहां से ये भी समझ लें कि जीडीए वालों ने भी ये कह लिया है, और इस सब के ऊपर बहुत से तज्जिए तबसरे हो रहे हैं कि एमकेएम तो हुकूमत से जुड़ी ही नहीं थी, वो हुकूमत से टूटती क्या, वो तो कहीं और जुड़ी हुई थी। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अच्छा, अब इस सब के अंदर जारी बात है, मुल्क के अंदर जिस तरह की सूरत हाल है, उस सब के अंदर जो आर्मी चीफ हैं जनरल सैयद आसिम मुनीर, उनकी आमद हुई है वजीर आजम ऑफिस के अंदर। ऑब्वियसली डीजी आईएसआई जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, उनके हवाले से भी तफसीलात इस वक्त सामने आ रही हैं। कुछ साफियों ने यह कंफर्म किया है जो इस्लामाबाद के अंदर रिपोर्टिंग करते हैं कि आज वजीर आजम शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने अहम मुलाकात की, और इस मुलाकात के अंदर कुछ इंतहाई अहम तरीन फैसले हुए हैं। अब यहां पर देखें कि जो अहम तरीन फैसले हैं उनके हवाले से जो चीजें हो रही हैं, इसमें एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं, काउंटलेस, जिन्हें हम नहीं काउंट कर सकते। और मैं समझता हूं कि क्या फैसले हुए ये आने वाला वक्त क्लियर तरीके से बता सकता है। क्लैरिटी तो इसी में है, क्योंकि देखिए अभाम होता है, और इतना अभाम होता है, ये ऐसी सिचुएशन इस वक्त आपके मुल्क के अंदर बन चुकी है, आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि इतनी कंफ्यूजिंग सिचुएशन कभी भी पाकिस्तान में नहीं बनी। इससे पहले बहुत हमने गन देखा, पॉलिटिकल मेस देखा, लेकिन इस वक्त जो बन चुका है, और इस सब के अंदर इकोनॉमी के अंदर जारी बात है, ताकतवर हल्कों का एक अपना स्टांस है। शबर जैदी साहब उनके बहुत करीब समझे जाते हैं, उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट जो है ये ताकतवर हल्कों को, एस्टैब्लिशमेंट को इकोनॉमी के मामलात पे ब्लैकमेल करती है कि जी ऐसा हो गया तो हम मुल्क की इकोनॉमी तबाह कर देंगे, 500 पे ले जाएंगे डॉलर, आपका मुल्क हम दिवालिया करा देंगे, IMF की डील हम खराब कर देंगे। यानी इन्होंने बिल्कुल मुल्क की गर्दन पे हाथ रखा हुआ है, और इनके इक्तदार को कुछ होता है तो ये गर्दन दबा देते हैं, कहते हैं कि ये देखो हम मारने लगे हैं। अगला कहता है अच्छा आप अपना इक्तदार बचाएं ना, जरा एक दफा मुल्क को तो छोड़ें। ये बिल्कुल उस तरीके से गन जो है ना वो मुल्क की मैशत के ऊपर लेके खड़ी हुई है ये इत्तेहादी हुकूमत। आप ये चीज समझ लें, ये ऐसे सफाक लोग हैं जो इस मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन जाहिर बात है कि अगली साइड की भी कुछ सब्र के पैमाने होंगे, और ऑब्वियसली वो भी देखना होगा कि वो कब लबरेज होते हैं, कब तक ब्लैकमेल होते हैं, और कब तक ये ब्लैकमेल करते रहते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।